تو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں کرنٹ افیئرس کے جو چلتے ہیں مختلف چینلز پر، خاص طور پر میں اپنے چینل اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس میں ہر لحظہ ہر وقت ہر مقام پہ ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کا کلچر یہ ہے، پاکستان کا کلچر وہ ہے، پاکستان کا کلچر اس طرح ہے، پاکستان کے کلچر کو ہمارے لوگوں نے اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا، اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا ملک سے باہر جا کے. اچھا، جب ہم بات کلچر ہی کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم فلم کی بات کر رہے ہیں، ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہم ناچ گانے کی بات کر رہے ہیں، ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ جہاں تک میری ناقص رائے ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مے بی آئی ایم رائٹ ان دس کانٹیکسٹ، کہ کلچر ایک معاشرے کی اپروچ کا نام ہے اور ایک کولیکٹیو اپروچ، یعنی ایک اجتماعی سوچ، مختلف چیزوں کے اوپر مختلف رویے، مختلف رد عمل، مختلف جذبات کا اظہار ہے جو کہ ایک معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، معاشرے کی روح کی عکاسی کرتا ہے. اب خواہ وہ موسیقی ہو، خواہ وہ فلم کا میڈیم ہو، خواہ وہ ماڈلنگ ہو، خواہ وہ معاشرے کے اندر کی کا جو وائلنس ہے وہ ہو. پاکستان کے کلچر پہ ہم نے مختلف باتیں کی، آپ کو دکھایا فلموں کے اوپر، اسٹیج ڈراموں کے اوپر، ادب کے اوپر، سب کچھ ہوا ہوا ہے اس شو کے اوپر. لیکن پاکستان کا ایک کلچر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ عورت کو، یہاں پر کمزوروں کو، یہاں پر بچوں کو، یہاں پر مختلف وہ لوگ جن کی رول آف لا میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، جن کو پولیس بھی پروٹیکٹ نہیں کرتی، جن کو عدالتیں بھی تحفظ نہیں دیتی، ان کی یہاں پہ کوئی عدالت رسی نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ایسی تیسی کرتا ہے پاکستان کا معاشرہ، ان کی جو ایسی تیسی کرتا ہے پاکستان کا کلچر، کیا یہ پاکستان کا یہی وہ امیج ہے، یہی وہ تاثر ہے، یہی وہ کلچر ہے، یہی وہ لوگ ہیں ہم جو کہ یہاں کے کولیکٹیو ایکشنز کو، جو یہاں کے وائلنس کو، یہاں کے جرائم کو وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں عملی طور پہ؟ یہی ہماری سوچ ہے. ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا کلچر یہ بھی ہے، اور یہ جو کلچر ہے اس میں ہم سب قصوروار ہیں اس کو بنانے میں، کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں جاتا آگے. اور پولیس سے تو خیر آپ امید ہی رکھ نہیں سکتے ہو کہ پولیس اس ملک کی ایسی ہے کہ جہاں بھی اس پہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ ڈاکو تلاش کرتے کرتے چلتا ہے، پتہ پولیس ڈاکو ہے یا وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اس کا اور یہ تاثر ایٹ لیسٹ ہے پاکستان کے اداروں کے بارے میں. ہم آپ کو آج پاکستان کے کلچر کی بڑی ہی شفاف قسم کی ایک امیج دکھائیں گے، ایک لہر دکھائیں گے، لیکن یہ امیج نہیں ہے، یہ ریئلٹی بھی ہے. ایک سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ایک پہلی جہد جو پاکستان کے کلچر کو دیکھیں کس طرح ریپرزینٹ کرتی ہے. ماں ہو، بہن، بیوی یا بیٹی، کائنات کو رنگ بخشنے والی عورت کی اپنی زندگی بہت بے رنگ اور پھیکی ہے. ہمارے ہاں عورت کی زندگی کا کوئی رنگ گہرا ہے تو وہ ہے خوف، ظلم، جبر اور زیادتی کا. اگرچہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے حوصلہ افزا کن قانون سازی ہو چکی ہے، ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2009 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف کسی قسم کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ خواتین کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کو قابل سزا جرم کی حیثیت دی گئی. 2004 میں تحفظ حقوق نسواں بل کے تحت خواتین کے حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے حدود قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں. ویمن پروٹیکشن بل 2006 میں طے کیا گیا کہ بدکاری، شادی اور زنا کے مقصد کے لیے کسی خاتون کو اغوا کرنے، معاوضے پر لینے، جبر کر کے، خوف یا لالچ یا دھوکہ دہی سے کسی کو بیچنے یا زنا پر مجبور کرنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے سب مجرم قرار پائیں گے. لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. حوا کی بیٹی آج بھی ظلم اور جبر کی شکار ہے. بہت سے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے. بچے میرے چھن گئے، بدنام ہو گئی، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا. ان کے پاس پیسہ ہے، وہ جیت گئے. ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اسی لیے عدالت نے سنا ہی نہیں. عدالت بھی ان کی سنتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے.
बदनाम मैं हो गई, बच्चे मेरे फिर गए, घर मेरा उजड़ गया। क्या आप मुझे वो दिलवा सकते हैं? इतने महीने हो गए इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए अदालतों में जाते। वो भी ऐसी अदालत है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता। किताबों में पढ़ा था बचपन में कि अदालतों में इंसाफ है, नहीं अदालतों में पैसा चलता, इंसाफ नहीं होता। बेबसी का आलम ये है कि पंचायतों के हुक्म पर कहीं इसका मुंह काला करके भरे बाजारों में चक्कर लगवाए जाते हैं, तो कहीं यही पंचायतें मौत की सजा सुना देती हैं और कभी बेटी पैदा करने के जुर्म में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं। मजहब, कानून और माशरा औरत को पसंद से शादी का हक देता है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल करने वाली लड़कियों को जान से मार देना एक आम सी बात है। बहावलपुर के इलाके हाकड़ा की साइमा का कसूर भी यही था कि उसने अपने हक का इस्तेमाल करना चाहा। साइमा अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपने हमसाये दिलावर से शादी करने की मुर्तकिब हुई। जान बचाने के लिए उसे कराची भागना पड़ा, लेकिन साइमा के घर वाले 21 जनवरी को उसे ये यकीन दिलाकर वापस ले आए कि उसे अपने घर से बाइज्जत तरीके से रुखसत करेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने साइमा को खानदानी पंचायत के सामने पेश कर दिया, जहाँ उसे सजाए मौत सुना दी गई। साइमा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं पहुंचा। उसे शदीद जिस्मानी तशद्दुद के बाद मुबैना तौर पर बिजली के झटके दे देकर कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बाप था। बन गए हुस्न इश्क दे चोरे, भज किथों ले आए लब के। 22 जनवरी को खानेवाल की नजमा परवीन को पंचायत के रूबरू पेश किया गया। नजमा पर बदचलनी का इल्जाम था। गांव के 9 मोअज़्ज़िज़ीन ने फैसला सुनाया कि नजमा के बाल काट कर मुंह काला कर गांव के चक्कर लगवाए जाएं। 24 जनवरी को कबीरवाला के नवाही इलाके अलाहाबाद की मुसर्रत बीबी चौथी बेटी पैदा करने की कसूरवार ठहराई गई। मुसर्रत बीबी के शोहर इल्ताफ हुसैन ने भाइयों के साथ मिलकर इसे कमरे में बंद करके दरांती से उसके दोनों हाथ काटने की कोशिश की। व्यूअर्स, ये भी पाकिस्तान की औरतें हैं और बहुत से लोग समझते हैं ये पाकिस्तान की असल औरत है, जो कुछ हो रहा है ये भी असल है। जिस माशरे में औरत अपनी पसंद की शादी करे, उसको ये तस्वर किया जाए कि घर से भाग के कर रही है, इस पे हमारे मुज्तहिदीन क्या कहते हैं ये भी हमने सुनना बाकी है हमारे लिए। और इस माशरे में ये इनकलाब कब आएगा कि ऑनर किलिंग के नाम पे ऑनर समझा जाता है ना, औरत ने अपनी पसंद शादी कर ली, तो फिर ऑनर अगर समझा जाता है तो फिर गैरत में तो फिर बाप को सबसे पहले अपने मुतल्लिक़ कुछ सोचना चाहिए, बजाय इसके कि उस लड़की को मार दिया जाए जो शरई लिहाज से बालिग है और अपनी पसंद की शादी करी। ये पाकिस्तान का समाजी कल्चर, ये समाजी सोच है, ये भी हमारी सोच है, ये भी हमारी औरत है, ये भी हमारी आवाम है। हम आपको प्रोग्राम में आगे लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कल्चर की और मुख्तलिफ जहतें कौन सी हैं, कि पाकिस्तान में इस तरह की इस वक्त माशरती सोच पाई जाती है जो 4 साल के बच्चों और 3 साल की बच्चों को भी नहीं छोड़ती। ये वहशत, ये बर्बरियत, ये दरिंदगी, ये कहाँ की सिविलाइजेशन, ये कहाँ का कल्चर है, ये देखेंगे सब कुछ ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक इन दिस शो। पाकिस्तान का कल्चर ये भी है कि उन्वान से हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज आपके सामने। ये एक तो आप देखिए ये जिस जगह हम आपको लेके जा रहे हैं 4 साल बच्चे की कहानी है, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस तरह की कहानियाँ पाकिस्तान के मोहल्लों और गलियों में रूटीन मामूल बनती जा रही है। और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि इस माशरे के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन और किस हद तक जो है वो जिसे आप कह सकते हैं ना कि दरिंदगी पर मबनी ख्वाहिशात, सफली जज्बात जो है कहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसने हमारे माशरे को किस हद तक गहरा दिया है। ये आप एक देखिए, आपके सामने एक वाक़या हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको वापस आते इसी प्रोग्राम में।
इस आंगन में हर तरफ सिसकियां और आहें बिखरी हैं। एक माँ है जिसे कोई पल करार नहीं, बहनें हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, बाप है तो वो बेबसी की एक मुंह बोलती तस्वीर बन चुका है। यहाँ कभी कहके और किलकारियां गूंजा करती थीं। कोई था जो इस झूले में झूलता था, जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की उम्मीद था, जो बहनों की आंख का तारा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। 4 साल अवैस फैसलाबाद के इलाके बिटाला कॉलोनी के तालिब हुसैन का इकलौता बेटा था, जो 30 दिसंबर 2010 को घर से खेलने निकला और फिर वापस नहीं आया। कुछ देर इंतजार के बाद माँ घबरा गई। उसने अवैस को मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चे इतने बैठे हैं, उन्होंने मैं पूछन दई नहीं वैस किथे है, खेडन दिया साडे नाल फुटबाल में बाहर चल गया। मैं तो चूल्हे मूहरे बैठी हूं तो मेरे दिल में कुछ होया, मैं कहंदी मेरा वैस है नहीं। दिल मेरा एक इधर हो गया, एक मेरा दिल इधर, दिल मेरा फट गया। बाहर निकली दवा जाओ तो विच मैं कहा सारे न्याणे इत्थे ते मेरे विच वैस है नहीं। लब्बा लाबी हजारां दे विच मैनूं वैस नहीं लब्बा। तीसरे रोज अवैस की खबर मिली, लेकिन वो एक बुरी खबर थी। अवैस की 5 साला बहन के मासूम जहन में इस होलनाक वाकये का एक एक पहलू नक्श हो चुका है। भाई को कहां कहां ढूंढा और फिर छोटे से अवैस की बोरी बंद लाश कहां से मिली। वो खेलता खेलता बाहर चल गया, फिर लब्बन लग गया सी ते फिर लब्बिया नहीं, फिर इधर सुटे बोरे वाल, बोरे च पिया ते 2 बोरे चढ़ाए ते विच ना निकल जाए वैसे। अवैस की माँ पथराई आंखों से सारा दिन दरवाजे की तरफ देखती है। बैठे बैठे इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रुपया मांगदे सी, मैं 2 रुपये दे, रुपया मैं दे दिता उन्हें। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੈਸ। ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸ ਆ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। गुलशन मेरा वैस सी, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਵੈਸ, मेरा वैस है। माँ बेटे के खिलौने सहलाती है और कभी सीने से लगा लेती है, लेकिन इस बेबस माँ के दिल को करार नहीं। बहनों की आंख का तारा उन्हें बेशुमार आंसू दे गया। अवैस की बड़ी बहन ज़हनी तौर पर माजूर है, लेकिन वाकये की होलनाकी से बेखबर नहीं। वो रो रो कर भाई को याद करती है और उसके भाईमाना कत्ल पर लड़खड़ाती जबान से एहतजाज भी। जो मेरा बाहर चल गया, पता नहीं कितना मारा, मेरा बड़ा निगाह दिया, एडा सोना दिया, मारा निगाह दिया। अहले मोहल्ला इस दरिंदगी पर हैरान है। वो यहीं तो खेला करता था। रोटी खान दे अंदर वो पता लगा अवैस नहीं लाउदा, अवैस नहीं लाउदा, बस सारा दिन इत्थे खेलदा, किसी गया ही नहीं सी दूर कदी ये नहीं सी कदी लभ के लिया जावे। उदा माशाअल्लाह इन्हां दे घरां 'च भी होया हुंदा सीगा दूरों, इदां दा नहीं सी भी कोई बच्चा सी इहदे घरों होया होना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया। अवैस को कत्ल से पहले जिनसी हवस का निशाना बनाया गया या नहीं, ये बात केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद वाजिया हो जाएगी, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश की बुनियाद पर पुलिस का कहना है कि अवैस के साथ जिनसी तशद्दुद खारिज इम्कान नहीं। उसको उस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ स्क्रैचेस हैं। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में कुछ इसकी पॉसिबिलिटी की है, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि इसकी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम भी उसी पहलू से इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ बदफैली की चीज़ है तो उस हिसाब से भी हमें कंफर्म जो सबूत मिलेंगे तो इंशाल्लाह उस पर हम उस बंदे की गिरफ्तारी करके और इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार करेंगे।